Okay, we can start the session, Shrastha sir. Good morning, friends. Today we are conducting this particular webinar to address few issues related to engineering courses, which you all as aspirants are aspiring for. Today's session will basically focus on how engineering has transformed itself in past few years, and there are very many developments which are occurring in the engineering field. To name few, like artificial intelligence, machine learning, data sciences, Internet of Things. These are the basic few areas where various developments have been done in this engineering field. So it is very important that we must understand the impact of these new technologies in the engineering field. And today's basically webinar, the agenda will be to make you understand the new developments in these engineering technologies, and we will be also trying to give you a brief sneak peek view of how this particular course runs and what are the important things which you have to undertake as a student of engineering. So I hope this particular session will be a very informative and mind-boggling session for you. I request you all to be with the webinar session for the last, and I hope you will be enriched with the experiences shared by our secretary sir and my fellow colleagues, who will be giving an in-depth idea of the different fields which are coming up. So now I would like to request our secretary sir to give a brief introduction of the various developments and how we run this particular engineering course in our institution. Sir, please. Thank you, Dr. Shrivastava. आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछले एक दो दिनों में नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री of 2020 that was awarded to two ladies, Emmanuel Carpenter and Jennifer Ododa, and उन्होंने gene editing पे काम करा है, and they are just 6th and 7th females जिनको नोबेल प्राइज मिला केमिस्ट्री में. So that is something very interesting. इसी तरह फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज है वो 3 लोगों में मिला, लेकिन उसमें जो पुराने रोजर पेनरोज, उन्होंने काफी वर्क करा हुआ है ब्लैक होल्स पे. So this is again something very interesting, and that would be the entire life is very interesting आज की डेट में, and that is the part of my presentation. Very good morning, मैं विशाल पांडे, I am secretary of Vision Group. Thanks आप यहाँ पे आए, आपने टाइम दिया. हम लोगों का आज का जो पर्पस है वो आप सारे लोग, आप सारे स्टूडेंट्स, आप सबने यूपीएससी के एग्जाम में अपियर हुए हैं, आप सारे लोग फ्यूचर में इंजीनियर बनने का कुछ प्लान करके आए हुए हैं. थोड़ा उस बारे में आपको बताना, कुछ इंजीनियरिंग के डेवलपमेंट्स बताना, और कुछ आपके सवाल, काफी सवाल होते हैं यंग एज पे, उनमें से कुछ का उत्तर आपके साथ ढूंढने में आपकी मदद करना. यही हमारा उपलक्ष्य है आज के इस प्रेजेंटेशन का. सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू and we'll start with our presentation. आपके करियर के जो डिसीजंस हैं उनसे आप पे, आपके फैमिली पे, आपके इंटायर सोसाइटी पे, सबके उस पर प्रभाव पड़ता है. एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है क्लास 12th के बाद, जब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है. इसके पहले आपके ज्यादातर डिसीजन स्कूल लेता था. आप क्लास 10th के बाद एक डिसीजन था कि आप साइंस लेंगे या कॉमर्स. अदरवाइज सब्जेक्ट्स, कौन से कोर्स चलाना है, कैसे सिलेबस रखना है, कैसे बुक्स लेनी है, most of the decisions were taken by school and you were happy with it. Now the time has changed. You have to make one of the most important decisions of your life कि 12th के बाद हम क्या करें, कॉलेज लें, कोचिंग में जाएं, कहाँ पढ़ें, क्या पढ़ें. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज योर लाइफ, इट इज योर डिसीजन. आपका निर्णय है उस डिसीजन में. हम अक्सर अपने जो निर्णय है वो जल्दबाजी में, दूसरों को देख के,
एज अ ह्यूमन बीइंग वी आर मोर ऑफ स्टोरी बिलीवर्स। हम कहानियों में विश्वास रखते हैं, कहानियों से समझने की कोशिश करते हैं। डेटा स्टैटिस्टिक्स को हम लोग बहुत नहीं समझ पाते हैं। दिस इज अ फैक्ट विच न्यूरो साइंटिस्ट से वर्ल्ड के सीनियर लोग बोलते हैं। तो हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो भी अक्सर हम जल्दबाजी में, इम्पल्सिव या बहुत सोच के नहीं लेते हैं। दिस इज व्हाट देयर इज अ वेरी फेमस ऑथर हु सेज दिस थिंग। एंड आज की डेट में जो आपका डिसीजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी लाइफ को पूरा, जो आपसे बात कर रहे हैं उसको करेगा। अगेन हम कोई भी डिसीजन ले लें, कई बार लाइफ में, फ्यूचर में जब हाइंडसाइट में जाते हैं, आज के 10 साल बाद, 20 साल बाद, तब उसको जस्टिफाई करना बहुत आसान होगा। आपको लगेगा कि मैंने ये सही लिया था या ये गलत लिया था, उस समय ये लेना चाहिए था। बाद में जो हाइंडसाइट में हम लोग एनालिसिस करते हैं उसका बहुत मीनिंग नहीं होता है। कुछ हो जाने के बाद तो कोई भी समझ सकता है क्या हुआ, होने के पहले उसको समझना, दैट इज द पार्ट ऑफ लाइफ। हम अक्सर अपने एजुकेशन और करियर को मिक्स कर देते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स वी कमिट, कि वी थिंक कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम जॉब करने जा रहे हैं। हम पूरी अपनी पढ़ाई को जॉब से केंद्रित कर देते हैं। दिस इज समथिंग, इट इज नॉट अ वेरी गुड एनालॉजी। सी, आपकी जो एजुकेशन है दैट इज मोर ऑफ अ टूल। एजुकेशन आपको तैयार करती है आगे दुनिया में ले जाने के लिए। एंड एजुकेशन का पर्पस आपको एक जॉब तक सीमित रखना या एक जॉब के लिए तैयार करना नहीं है। एजुकेशन तो आपको तैयार करना है इस पूरी लाइफ में जीने के लिए, जहां पे आप आगे बढ़ के हर तरीके से जा सके। जॉब्स तो चेंज होते हैं, मार्केट्स बहुत ज्यादा चेंज हो रहे हैं। देयर हैज बीन लॉट ऑफ चेंजेस व्हिच हैव बीन कम अप। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है कि आज के जो एग्जिस्टिंग जॉब्स हैं उसमें 2025 तक ज्यादातर जॉब्स खत्म हो जाएंगे। 2035 तक ऑलमोस्ट 60% जॉब्स में मेजर रीवर्किंग होगी। तो अगर आप तैयार होंगे तभी आप आगे जा पाएंगे। There is one thing which you all should agree: change is the only constant. लाइफ में चेंज कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यू कैन नॉट गेट अवे विद चेंज। यू कैन नॉट से कि नहीं, मैं चेंज नहीं होना चाहता हूं। दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। द वर्ल्ड इज चेंजिंग रैपिडली, स्पेशली इन दिस टाइम्स, इन द टाइम ऑफ कोविड, पोस्ट कोविड एरा, जिसको हम न्यू नॉर्मल बोलते हैं। चेंजेस बहुत रैपिडली आ रहे हैं एंड यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। स्मार्ट डिसीजन केवल तब लिए जा सकते हैं जब आपके पास इंफॉर्मेशन हो, आपके पास डेटा हो, तभी आप आगे के डिसीजंस बढ़ के ले सकते हैं। सो दिस इज अ पार्ट, हम लोग के आज का पूरी मीटिंग का पर्पस है, ये सेमिनार का पर्पस है कि आपको कुछ बेसिक डेटा दे जिससे आप डिसीजन ढंग से ले सके। हम अक्सर ये बात करते हैं कि चेंजेस आए हैं, जनरेशंस चेंज हो रही हैं। अब जब हम जनरेशन की चेंजेस की बात करते हैं, चाहे वो मोबाइल का हो, 5G आ रहा है, 4G आया था, 3G के बाद आया था, या हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करते हैं, इंडस्ट्री 1.0, 2.0। सो चेंजेस जो है, जब कुछ रेडिकल चेंज आता है, सी जब कंप्यूटर था इनिशियल आपका, जब ट्रांजिस्टर यूज होते थे, उसके बाद चिप्स आई, तो दैट वाज अ कंप्लीट चेंज, एक जनरेशन चेंज हो गई। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें, मैकेनाइजेशन हुआ, स्टीम इंजन बना, स्टीम वॉट ने बनाया था, तो वो दैट वाज इंडस्ट्री 1.0। 2.0 में मास लेवल पे प्रोडक्शन हुआ, जो फोर्ड ने, हेनरी फोर्ड स्टार्टेड अप इन यूएस एंड पूरा यूके में यूज हुआ। फिर इंडस्ट्री 3 आया, जहां पे ऑटोमेटेड प्रोडक्शंस आने लगे, मशीन्स अपने आप वर्क करने लगी। एंड आज की डेट में हम इंडस्ट्री 4.0, दिस इज वन ऑफ द बेडरॉक्स। ये कुछ टर्म्स हैं जो आप अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रहेंगे तो आपको बार बार सुनने में आएगा एंड आपका फ्यूचर भी इस पे डिपेंड होगा। इंडस्ट्री 4.0 इज स्मार्ट फैक्ट्रीज, ऑटोनॉमस, आईओटी बेस्ड सिस्टम्स, जहां पे इंडस्ट्री अपने आप काम कर सके, ऑटोनॉमस चीजें हो, स्मार्ट डिसीजंस ले सके। दिस इज व्हाट इज नॉकिंग एट आवर डोर। यहाँ पे इस मुहाने पे हम खड़े हैं, यहाँ पे हम चेंज होने के लिए तैयार हैं। सी अगेन, आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एनालॉजी। हमने जब घोड़ा गाड़ी बनाई थी तो उसमें हमेशा चेंज आते रहे। घोड़ा गाड़ी छोटी हुई, बड़ी हुई, ऊपर से लगा कुछ, व्हील्स में चेंजेस आए, दैट वाज वन जनरेशन। चेंज तो हमेशा हो रहा था। घोड़ा गाड़ी से भी के थ्रेशर का काम हो रहा था, फार्म में काम हो रहा था। जब स्टीम इंजन आया, इंजन बन गया, तो वो एक नई जनरेशन आ गई। इसी तरह जब फॉसिल फ्यूल्स आ गया, डीजल का इंजन आ गया, दैट वाज कंप्लीटली न्यू जनरेशन। इसी तरह आज की डेट में चेंजेस आर कांस्टेंट। हमें इस चेंज से तैयार रहना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। एंड हम चेंज को लेकर तब तैयार होंगे जब हमें जो कॉलेज या जहां भी एजुकेशन ले रहे हैं वो हमें फ्लेक्सिबल बनाए,
हम सीखने को तैयार हों, एंड चेंजेस आर ऑलवेज देयर। लेकिन आज की डेट में टेक्नोलॉजी का जो रैपिड मूवमेंट है, दैट हैज ब्रॉट इन चेंजेस एट एक्सपोनेंशियल रेट, और इन्हीं को हम एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजीज भी बोलते हैं। टेक्नोलॉजी इज बिकमिंग अ की फॉर आवर सर्वाइवल। स्टूडेंट्स ऑफन आस्क दिस क्वेश्चन कि क्या इंजीनियरिंग का फ्यूचर है, क्या टेक्नोलॉजी का फ्यूचर है? दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज क्वेश्चन। हम लोग की पूरी ह्यूमन रेस आज की डेट में टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, और डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। आप देखिए आज की डेट में कोई भी काम हो वो सारा टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है। आपसे मैं बात कर रहा हूं, आप अपने घर पे बैठे हुए हैं, दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड टेक्नोलॉजी डज नॉट सी एनी रिवर्सल। ऐसा नहीं होगा कि कोविड एरा खत्म हो जाएगा तो हम अचानक ही ये सब बंद कर देंगे, ये तो हमने सीख लिया है। अभी आगे बढ़ता जाएगा, इसी पे बिल्डअप होता रहेगा। ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, आईओट्स, डेटा साइंसेस, ब्लॉकचेन, ऑगमेंटेड रियलिटीज, ये सब पार्ट ऑफ लाइफ बनता जा रहा है। क्वांटम कंप्यूटिंग, एंड ये सारी केवल चीजें मैं आपको डराने के लिए नहीं बता रहा हूं। मेरा जो ध्येय है कि दिस इज बिकमिंग पार्ट ऑफ एवरी प्रोसेस। किसी एक ब्रांच की बात हम नहीं कर रहे हैं। ऑफन पीपल फील कि एक ब्रांच से रिलेटेड बात है, लेकिन जो चेंज है, वो फ्यूचर ऑफ वर्क जो है, वो हर टेक्नोलॉजी में आता है। चेंज का मतलब ही तब होता है जब वो लाइफ के हर पिरामिड के हर एंगल पे जाए, सब जगह सम्मिलित हो, तभी वो चेंज है। अगर वो चेंज केवल कुछ ही जगह हो रहा है, कुछ ही इंडस्ट्रीज में हो रहा है, तो वो चेंज बहुत मायने नहीं रखता है। वो चेंज तब इंपॉर्टेंट होता है जब हर जगह हो। एंड जो फ्यूचर का है, फ्यूचर वर्क है, टेक्नोलॉजीज है, वो हर जगह चेंज हो रही हैं। सी, आप अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो अभी जो कुछ टाइम पहले तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपके जो प्रोसेसेस थे, वो सारे ऑटोमेशन के करीब करीब आ गए थे। आप इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज कर रहे थे, आप कंप्यूटर यूज कर रहे थे, चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थे, चाहे आप सिविल में थे, चाहे आप एग्रीकल्चर में थे, आप डिवाइसेस को यूज कर रहे थे। एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा मैकेनिकल डिवाइसेस यूज हो रहे थे। अब जब नेक्स्ट पार्ट आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग होगी, तो ये भी हर जगह यूज होंगे। ऑलरेडी यूज हो रहे हैं, ऑलरेडी हर जगह इसका यूज हो रहा है। एंड आप अगर एक अच्छे मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो भी आपको ये टेक्नोलॉजीज को समझ के मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यूज करना पड़ेगा। दैट इज द पार्ट ऑफ होल थिंग। किसी भी कॉलेज की सबसे बड़ी भूमिका क्या होगी? किसी कॉलेज को क्या करना चाहिए? आई पर्सनली बिलीव कि किसी भी कॉलेज की सबसे बड़ी भूमिका होती है कि वो आपको सीखना सिखाए। दिस इज द ग्रेटेस्ट पार्ट एनी कॉलेज कैन प्ले। अगर वो आपको सीखना सिखा देगा तो आप आगे तैयार होंगे, आगे बढ़ने के लिए, आप आगे कहीं भी जाने के लिए तैयार होंगे। दिस इज द पार्ट, दिस इज द प्राइमरी पोर्शन विच एनी कॉलेज शुड प्ले। I'll show you a basic brief headline and details. देखिए, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, अगर हम ब्रांचेस की बात करें, आप में से काफी सारे लोगों का अगर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो एक सवाल होता है कि हम ब्रांच कौन सी चुने। आई एम श्योर आफ्टर मी रेहान सर वुड बी टेकिंग अप, वो आपको इसमें कुछ और डिटेल्स बताएंगे। लेकिन मैं आपको एक अलग चीज बताना चाहता हूँ। इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि आप ब्रांच कौन सी ले, ब्रांच तो आपको वो लेनी चाहिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। अगर आपके मन में ये सवाल है कि मेरी ब्रांच में फ्यूचर है या नहीं, उस ब्रांच से जॉब मिलेगा या नहीं, उस ब्रांच में हम आगे बढ़ पाएंगे, ये डिपेंड करता है कि आप क्या सीख सकते हो। अगर आप लेगेसी टूल्स में जा रहे हो, जो आपने ब्रांच ले ली, उसमें आप पुरानी चीजें ही सीखने में अपनी पूरी एनर्जी लगा दे रहे हो, तो किसी भी कोई भी ब्रांच ली हो, टाइम इज टफ, चेंजेस आ रहे हैं। आप कोई भी ब्रांच लें, आई गिव यू एन एग्जांपल। अगर आप एग्रीकल्चर ब्रांच लेते हैं, दिस इज जस्ट अ सिंपल एग्जांपल। आप देखिए एग्रीकल्चर ब्रांच में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। यू कैन, दिस इज आवर वेबसाइट, वी विल शेयर द लिंक्स विद यू। आप इसको एक एक बार देख सकते हैं। आप जिस भी ब्रांच में इंटरेस्टेड हो, यू कैन सी कि इतने चेंजेस आ रहे हैं एग्रीकल्चर ब्रांच में। दिस इज जस्ट वन एग्जांपल, आई डोंट मीन एनीथिंग एल्स। एक एग्जांपल कि एग्रीकल्चर ब्रांच में एरियल इमेजेस आ रही हैं, जीपीएस टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, प्रिसिजन फार्मिंग यूज हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रही है, आईओटी का यूज हो रहा है। अगर आप ये टेक्नोलॉजी समझ पाए थोड़ा सा, एंड इस पे डिटेल पे वर्क कर पाए, तो आपने कोई भी ब्रांच ली हो, आप उसमें काफी आगे जा सकते हैं। एंड दिस इज बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द एंटायर एक्सरसाइज। यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दिस थिंग। इसी तरह आपको अगर दिखाते हैं, आपने अगर सिविल इंजीनियरिंग ली है, सिविल इंजीनियरिंग आप चूज कर रहे हैं, पॉइंट ये है कि सिविल इंजीनियरिंग लेके आप क्या क्या सीखने को तैयार हो।
आप जहां से सिविल इंजीनियरिंग पढ़ोगे, किसी भी कॉलेज से, इट डज नॉट मीन कौन सा कॉलेज, अगर कोई भी अच्छा कॉलेज होगा, कोई भी अच्छा कोर्स होगा, तो वो साथ में आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, ड्रोन्स का यूज, उसके रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, वर्चुअल रियलिटी का यूज, एडवांस बिल्डिंग मटेरियल्स, मोबाइल टेक्नोलॉजी का यूज, ये सब सिविल का एक पार्ट बन गया है. नोबडी कैन रन अवे. हम ये नहीं कह सकते हैं कि आज के 20-25 साल पहले जो सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाई जा रही थी, इवन आईआईटी मद्रास से, आई हैड वन ऑफ माय अंकल्स हु वाज इन आईआईटी मद्रास, वो एक अलग चीज थी. उस टाइम पढ़ा रहे थे, लेकिन कॉलेज उनको तैयार कर रहा था आगे सीखने के लिए. आप उसी चीज को स्टिक नहीं हो सकते हैं. अगर आपने इन चीजों को थोड़ा थोड़ा सीख लिया, अगर आपने डेटा साइंस को सिविल इंजीनियरिंग में कैसे यूज करते हैं ये सीख लिया, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरिएबल्स में थोड़ा आपने प्रोजेक्ट बना लिया, 3D प्रिंटिंग से रिलेटेड अगर आपने थोड़ा काम कर लिया, तो यू हैव वेरी गुड फ्यूचर. यू कैन बी इन एनी ब्रांच. एंड सी, ब्रांच इज जस्ट वन ऑफ द फिनोमेना. आप में से काफी सारे लोग जो इंजीनियरिंग जानते नहीं होंगे, इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर का सिलेबस 80% सारी ब्रांचेस का सेम होता है. लास्ट ईयर तक ऑलमोस्ट 20%, 25% सिलेबस सेम होता है. इट इज नॉट कि आपने ब्रांच ले ली तो केवल वही पढ़ाएंगे. काफी चीजें कॉमन होती हैं. अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें, कंप्यूटर साइंस में 3 अलग अलग स्पेशलाइजेशन हम लोग ला रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस एंड आईओट. ऐसा नहीं होगा कि आईओट आपने ले लिया तो केवल आईओट पढ़ाएंगे. कुछ पोर्शन स्पेशलाइजेशन होगा, 20% शायद अलग होगा, बाकी कॉमन होगा. दिस इज समथिंग विच यू मस्ट अंडरस्टैंड. एंड आई विल अर्नेस्टली रिक्वेस्ट कि आप इस पेज को एक बार देखें. इस पेज में आप विजिट करें अलग अलग ब्रांचेस को, जस्ट फॉर योर ओन क्यूरियोसिटी, आपके खुद के पर्पस के लिए. यू विल गेट एन आइडिया कि ब्रांचेस में क्या हो रहा है. आपसे मैं जो दूसरी बात कह रहा था कि कॉलेज की जो भूमिका होनी चाहिए, आई हैव कम टू एंड ऑफ माई लेक्चर. कॉलेज की कुछ आवश्यकताएं, आप कोई भी कॉलेज चुने, कोई भी वातावरण चुने, कुछ आवश्यकताएं कॉलेज की होनी चाहिए, कुछ आवश्यकताएं आपकी होनी चाहिए. कॉलेज हो जहां पे आपको इनोवेशन को प्रोत्साहित करे, सवाल पूछने को प्रोत्साहित करे, आपको जिज्ञासु होने दे. लैब्स, लाइब्रेरी, दीज आर आल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट्स. पीयर टू पीयर लर्निंग तब हो सकती है. आई वाज वेरी फॉर्चुनेट, मैंने जो कॉलेज ज्वाइन करा था वहां पे आई हैड फ्यू फ्रेंड्स, हम लोगों ने मिलके काफी वर्क करा, काफी सीखने को मिला. पीयर टू पीयर लर्निंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं आपका आपस में सीखना. एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज, यू कैन नॉट go away with that. कॉलेज में अगर आपके अच्छे गेस्ट लेक्चर्स हो रहे हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, आप जहां भी जाएंगे आप उनको भी सीरियस लीजिए. ये आपको इंडस्ट्री को आगे जीने के लिए तैयार करेगा. दिस विल बी अ पार्ट. आप जॉब कहीं ज्वाइन करते हैं, आप कहीं अपना बिजनेस बनाते हैं, उसके पहले आपको मौका देगा इंडस्ट्री को समझने के लिए. हम लोग ने अपने कॉलेज में वी हैव, मैंने ये छोटा सा, हम लोग वी हैव दिस मैट्रिक्स जो हम यूज करते हैं. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. आप कहीं भी जाएं, आपको कॉलेज का जो पर्पस होना चाहिए, आपका कैरेक्टर ग्रोथ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज. कैरेक्टर का मतलब केवल मॉरल साइंस वाला नहीं आ जाता है. कैरेक्टर का मतलब आप भागे ना, आपके अंदर हिम्मत हो आगे बढ़ने के लिए, आपके अंदर जज्बा हो कि आप अगर हार रहे हो तो भी आप छोड़ो ना, आप जल्दी फ्रस्ट्रेट ना हो. ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, शायद सीखने में सबसे ऊपर होती हैं. अगर आपके अंदर अपनी गुस्सा को सहने का शक्ति, सामने वाले को रिस्पेक्ट देने की चीज, आपको भागना जाने की, हार के बावजूद डटे रहने की क्षमता होती है, तो ही आप लाइफ में आगे बढ़ जाते हो. स्किल्स हैव वेरी माइनर रोल इन लाइफ. डेवलपमेंट काफी कुछ होता है आपकी खुद की मेहनत पे. Acquiring skills for professional life is definitely important. अगर आपको नई चीजें नहीं पढ़ा रहा है कॉलेज, प्रोजेक्ट, टेक्निकल पेपर्स, जहां भी आप जाओगे ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होंगी. नेटवर्क एस्टैब्लिश होना अगेन इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. आपके जो फ्रेंड्स होंगे कॉलेज में, दे विल बी इंपॉर्टेंट. आपके साथ के लोग, टीचर्स, एलुमनाई, एंड आप एक फ्यूचर में रिसर्च एंड इनोवेशन की तरफ प्रेरित हो. आज की डेट में अगर आप प्रधानमंत्री की स्पीचेस सुने, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ही इज टॉकिंग ऑन रिस्पॉन्सिबल एआई, ही इज टॉकिंग ऑन इनोवेशन. व्हाट आई मीन टू से इज कि दिस इज बिकमिंग अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ. यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम इट. कॉलेज के साथ साथ आपकी खुद की क्षमताएं अगेन इज समथिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. आप कितना तैयार हैं. डियर स्टूडेंट्स, लाइफ में we often see college में, I was telling you, this is college में आप जहां भी जाएं आपको थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि कॉलेज में कैरेक्टर डेवलपमेंट सेल्स हो, लेक्चर्स और वर्कशॉप्स हो, सर्टिफिकेशन कोर्सेज आपको और सीखने के लिए, प्रोजेक्ट सेमिनार्स, ये सारी चीजें हर कॉलेज में होनी चाहिए, हर अच्छे कॉलेज में होती हैं. लेकिन आपको इन सब में पार्टिसिपेट भी करना चाहिए. आप जो कॉलेज ज्वाइन करें केवल डिग्री के लिए ना हो. डिग्री इज जस्ट वन पार्ट ऑफ योर लाइफ.
डिग्री इज समथिंग वेरी माइनर, आपको केवल एक जगह के लिए है, आपको तो लाइफ में तैयार होना आगे बढ़ने के लिए। मैंने अपने लेक्चर की शुरुआत करी थी विद द पार्ट की लाइफ इज समथिंग, इट हैज बिकम वेरी इंटरेस्टिंग नाउडेज। मैं इसी पोर्शन पे कंक्लूड भी करना चाहूंगा। मैंने जब इंजीनियरिंग करी थी तो इतने ऑप्शंस नहीं थे, आज की डेट में बहुत ऑप्शंस हैं, एंड उन ऑप्शंस को यूज करना आपके हाथ में है। यू शुड नॉट लुक फॉर शॉर्टकट्स, आप जहां भी जाएं आपको मेहनत करनी चाहिए। यू आर द फ्यूचर, यू आर द फ्यूचर ऑफ एंटायर ह्यूमैनिटी। आप ही से हम लोग का पूरा प्रोग्रेस है। एंड यू मस्ट ऑल्सो रियलाइज द फैक्ट कि जब इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था यूएस में, उसी टाइम आपका डिज्नी बना था, उसी टाइम माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट हुआ था। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उस टाइम सबसे ज्यादा पेटेंट्स हुए थे, डेवलपमेंट हुआ था। जब कोल्ड वॉर अपने एक्सट्रीम पे था तो स्पेस से लेके हर जगह की टेक्नोलॉजी, इंसान मून पे पहुंच गया, हर जगह गया। पर्पस क्या है कि जब भी लाइफ में चैलेंजेस आए हैं तो ह्यूमन बींग्स ने हमेशा ही ग्रो करा है, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करा है और आगे बढ़े हैं। आप सबसे भी उम्मीद होगी कि चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें। ये वो टाइम है जब बहुत जल्दी चेंजेस आ रहे हैं। वर्ल्ड का जो टॉप 500 कंपनीज है, फॉर्च्यून 500, उसमें ऑलमोस्ट 60-70% वो हैं जो खुद अभी बनी है, जो पिछले 10 साल में 15 साल में बनी है। नई कंपनीज हैं, नए स्टार्टअप्स हैं। स्टार्टअप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जगह कॉलेज होती है। स्टार्टअप्स तो कॉलेज के जो ग्रुप्स होते हैं, आपके 3 दोस्त ने मिलके naukri.com बना लिया, कुछ फ्रेंड्स ने मिलके फ्लिपकार्ट बना दिया। इसी तरह आप जहां ज्वाइन करें वहां पे आप आगे का देखें। लाइफ में सपने बड़े देखने चाहिए, बहुत छोटे सपने देखने से बहुत आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो आई थैंक यू अगेन फॉर अटेंडिंग माय सेशन। आई विल ऑलवेज बी देयर। अगर आप में से कोई कभी सवाल पूछना चाहे, अभी वी हैव, मेरे बाद एक छोटा सा सेशन और है, फिर वी हैव क्वेश्चन आंसर सेशन। आपके जितने भी सवाल होंगे उनमें से कुछ का हम लोग जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अदरवाइज यू आर वेलकम। इस समय कोरोना टाइम में आप शायद हर जगह जा नहीं सकते हैं, यही पर्पस है ये सेशन करने का। यू कैन ऑलवेज विजिट माई कॉलेज, आई विल गिव यू माई ईमेल एड्रेस, यू कैन आस्क मी थिंग्स। यू आर वेलकम। आप आई सीरियसली होप कि आप लाइफ में जहां भी जाएं आप बहुत प्रोग्रेस करें, आप मेहनत करें, एंड एक अलग ऊंचाइयों का, एक अलग आपकी लाइफ में एस्पिरेशन हो, एक अलग ड्रीम हो, जिससे पूरा देश आपके साथ आगे बढ़ सके। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर। आई विल इनवाइट रेहान सर टू conclude with his whole thing. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय मोहम्मद रेहान। जैसा कि अभी सर ने काफ़ी डिटेल में आप लोगों को आने वाली जो टेक्नोलॉजी है और जो पूरा समय के साथ साथ जो चीज़ें चेंज हो रही है वो सारा कुछ आपको बताया है। मैं आपको कुछ यूपीसी से रिलेटेड चीज़ें बताऊंगा। और इंजीनियरिंग कॉलेज में आप सभी लोगों ने यूपीसी का एग्ज़ाम दिया हुआ है और मुझे शायद आप लोग जानते होंगे। और देखिए, आज का जो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि आज जो हमने आपको बुलाया है, जो आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हम लोग आपका ज़्यादा समय न लेके इसको बस 15 से 20 मिनट में इस प्रोग्राम में आपको हम लोग सारी डिटेल बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके मन में एक सवाल था कि हम लोग को यहाँ पर क्यों आए हैं और हमको क्यों बुलाया गया है। देखिए, आज जो हमारे आप इस वेबिनार को कराने का मकसद है, जो आपको बुलाने का मकसद है, वो यही है कि आप लोग सभी लोग इंजीनियरिंग के लिए आप लोगों ने एंट्रेंस एग्जाम दिया हुआ है और कुछ लोगों ने आईआईटी का भी एग्जाम दिया है, कुछ लोगों ने यूपीएसडब्ल्यू का भी दिया हुआ है, कुछ लोगों का कहीं पर सिलेक्शन भी हो गया है और कुछ लोगों ने अभी डिसाइड नहीं किया हुआ है। देखिए, जब हम लोग इंजीनियरिंग करते हैं या इंजीनियरिंग के लिए हम लोग सोचते हैं तो हमें कुछ चीज़ों में बड़ा डाउट होता है। जैसे मैं खुद एक बीटेक कंप्यूटर साइंस से मैंने एमटेक भी किया हुआ है, मेरी पीएचडी चल रही है। तो आज का जब मैं भी 12th में था तो मुझे भी बड़ा कंफ्यूजन था कि मैं बीटेक करूं कि ना करूं, या किस ब्रांच से करूं या कहां से करूं, और बीटेक में आगे स्कोप है कि नहीं। इन सब चीज़ों में बड़ा कंफ्यूजन होता है और ये आपको सही सजेशन देने वाले लोग बहुत कम होते हैं मार्केट में। हो सकता है कि आपके कोई खास हो, आपको बता दें, या आप लोग तो सब अच्छे स्कूल से, आपको एक आइडिया है कि इस टाइम पे क्या चल रहा है। अभी सर ने भी आपको बताया है। मैं भी आपको थोड़ा सा इसी पे मैं अपनी बात को कंटिन्यू करूंगा। मैं आपको यूपीसी की जो रिजल्ट आने वाला है, इससे रिलेटेड जो यूपीसी की काउंसलिंग अभी होने वाली है, उसमें क्या होने वाला है, किस तरह काउंसलिंग होने वाली है, और लास्ट ईयर की क्या ओपनिंग क्लोजिंग रैंक थी,
ब्रांच में क्या स्कोप चल रहा है इस टाइम पे, किस ब्रांच, कौन कौन सी ब्रांचेस बीटेक में है, आईआईटीज में किस तरह की पढ़ाई हो रही है, तो मैं आप और एक इंजीनियरिंग कॉलेज का क्या सिलेबस होता है, मैं इन सब चीज़ों के बारे में आपको भी आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ जितने भी हमारे छात्र आए हुए हैं इस वेबिनार में, आप लोगों विजन ग्रुप के बारे में आपको आइडिया भी होगा, और आपने कुछ बच्चों ने यहाँ पर हमारे वहाँ एग्जाम भी दिया था, वो लोग हम लोग को पहचान रहे होंगे। तो मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, और अब मैं अपने प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू करता हूँ। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको यूपीएसडब्ल्यू के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। यूपीएसडब्ल्यू एग्जाम आपने दिया हुआ है, और उम्मीद है कि इसका रिजल्ट 20 तारीख तक आ जाएगा। जैसा कि हम लोग की यूपीएसडब्ल्यू में बात चल रही थी कि रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि काउंसलिंग भी करानी है, और जो एमएचआरडी की गाइडलाइंस आई है उसके हिसाब काउंसलिंग की तुरंत ही पढ़ाई चालू हो जाएगी, क्योंकि सेशन थोड़ा सा लेट हो गया है कोरोना की वजह से। तो उम्मीद है कि जैसे ही आप लोग को कॉलेज मिलेगा उसके बाद तुरंत रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग ऑनलाइन होगी, और आप लोग इसमें कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको कुछ एनालिसिस दिखाता हूं, जो एक आप सभी लोग ने यूपीएसडब्ल्यू के एग्जाम दिया हुआ है, सभी लोगों के रिजल्ट आने वाले हैं, और आप लोगों ने अपनी आंसर शीट भी देख ली होगी। ये जो आंसर आपको हम लोग ने दिया था, या अवेलेबल भी है वहां पर यूपीएसडब्ल्यू की साइट पे जाके आप आंसर निकाल भी सकते हैं, और ये जो आंसर उससे आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि अगर आपके इतनी रैंक आती है तो आपके कितने मार्क्स पे कितनी रैंक आ सकती है। ये लास्ट कुछ सालों का डेटा है जिसके बेस पे ये एनालिसिस की जाती है कि अगर आपके 500 के ऊपर मार्क्स हैं तो आपकी 1 से 600 रैंक आती है, 400 से 499 के बीच में है तो 600 से 1000 के बीच में। अगर आपकी बिलो 120 रैंक आती है तो आप ये मान के चलिए कि आपकी जो है 90,000 के अबव रैंक आएगी। देखिए, आपको मैं कुछ कॉलेजेस के बारे में बताता हूँ कि बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि मैं अगर मेरी ये रैंक आ गई है मेरा आईआईटी में। देखिए, अगर किसी का आईआईटी में सिलेक्शन हो जाता है तो आप जा सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आईआईटी में कुछ पुरानी आईआईटी भी है, और कुछ आईआईटी अभी 2008 से नई भी खुली हुई है, आईआईटी पटना, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी भुवनेश्वर, बहुत सारी आईआईटीज हैं। इन केस अगर आप आईआईटी में नहीं जाते हैं, यूपीएसडब्ल्यू में अगर आपकी बहुत अच्छी रैंक आ जाती है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। इस टाइम पे गवर्नमेंट कॉलेज आप जानते हैं बहुत कम ही गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट कॉलेज से ही आपको एक अच्छी जॉब मिले या आपको एक अच्छा प्लेसमेंट मिले, ऐसा बिल्कुल हम नहीं कह सकते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में भी पढ़ाई का लेवल बहुत ही अलग है, पढ़ाई को लेके हर जगह पर हर चीजें कराई जा रही है। हम लोग भी बहुत सारी चीजें नहीं करा रहे हैं, अभी हम आपको पूरा कुछ दिखाएंगे कि इंजीनियरिंग लेवल पे क्या क्या चीजें हो रही है। तो आप लोगों को जिन चीजों पे कंफ्यूजन होता है मैं उन सभी बातों को डिस्कस करूंगा। तो पहला आपको मैं इस चार्ट के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो एक्सपेक्टेड आपकी रैंक है वो इस तरह की रैंक आने वाली है, इसके करीब करीब ही आपकी रैंक आएगी, आप अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं। अब रैंक आने के बाद अगर आप ऑनलाइन काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो ऑनलाइन काउंसलिंग का इस बार प्रोसेस क्या है, देखा हम लोग ने यहाँ पर हेल्प डेस्क सेंटर भी बना रखा है। इनकेस अगर किसी बच्चे को ऑनलाइन काउंसलिंग में दिक्कत है तो कॉलेज विजिट कर सकता है, पूछ सकता है, हमारे से पूछ सकता है, हमारी टीम से पूछ सकता है। इसका प्रोसेस देखिए क्या है, इसमें काउंसलिंग जो होगी वो 3 से 4 राउंड में होगी, जितने भी राउंड यूनिवर्सिटी फाइनल करती है अभी रिजल्ट के बाद। तो सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा ऑनलाइन, इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा। जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने, इसमें बहुत कम ही डॉक्यूमेंट मांगते हैं, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो आपके 12th लेवल के ही होते हैं, वो कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है। इसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। सीट अलॉटमेंट के बाद आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, फ्रीज या फ्लोट। अगर आप फ्रीज करते हैं तो आपकी सीट लॉक हो जाएगी और आपको 20,000 रुपए, अगर आप जनरल और ओबीसी के हैं तो 20,000 आपको पेमेंट करना होगा, अगर आप एससी के हैं तो 12,000। अगर आप फ्रीज नहीं करना चाहते हैं, आपको कॉलेज नहीं समझ में आ रहा है, आप इसको आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप फ्लोट करेंगे। फ्लोट के बाद आप फीस अभी नहीं जमा करेंगे, आपके पास ऑप्शन खुला रहेगा और आप नेक्स्ट राउंड में जा सकते हैं। उसके बाद आप जब जिस भी राउंड में आपको कॉलेज लग गया कि आपके मतलब का मिल गया तो आप वहां पर फ्रीज कर सकते हैं और आप पीआई रिपोर्टिंग के लिए कॉलेज पहुंच सकते हैं।
ये जो प्रोसेस है ये ऑनलाइन होगा, आप अपने घर पे बैठ के ही काउंसलिंग करा सकते हैं। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए जो ये काउंसलिंग है, काउंसलिंग आप लोगों ने, कुछ लोग इसमें जानते भी होंगे काउंसलिंग का प्रोसेस। अब मैं बस आपको अभी मैं आपको यूपीएसडब्ल्यू की आगे बात और करूंगा, इसमें आपको कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको, आप जिस वेबिनार में आए हुए विजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का वेबिनार में, मैं आपको वेबिनार के बारे में बताना चाहता हूं कि वेबिनार जो है ये हमारा जो वेबिनार, हमारा जो विजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, ये इसमें हम लोग जो है क्या कौन कौन सी चीजें हैं, हमारे कौन कौन से ग्रुप हम लोग चला रहे हैं। देखिए विजन जो हमारी कंपनी है, हम लोग का बहुत बड़ा ग्रुप है। हम लोग पिछले कई सालों से, 20-25 सालों से इंश्योरेंस सेक्टर में ऑल ओवर इंडिया बहुत सारी कंपनीज है हमारी। और हम लोग के जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो कानपुर है, अलीगढ़ है, डिप्लोमा कॉलेज भी है, ITI भी है, रामा देवी पे होटल कनिष्का है, और नारायणा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, विजन स्कूल भी है। जो हमारे कैंपस हैं, कानपुर में हमारे 3 कैंपस हैं, विजन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, विजन कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, विजन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। अलीगढ़ में विजन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, विजन ग्लोबल स्कूल एंड विजन प्ले स्कूल। जो ब्रांचेस हैं, अभी मैं आपको कुछ ब्रांचेस के बारे में बताऊंगा जो आप बीटेक में अपनी चॉइस में ले सकते हैं, और इस ब्रांचेस में क्या स्कोप है मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। और इसके बाद देखिए डिसीजन आपका, आप किसी भी कॉलेज में जाएं, लेकिन आपको प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए कि आप मार्केट में क्या चल रहा है, समय के हिसाब से क्या चीजें जरूरी है, क्या हमें चॉइस में लेना चाहिए। और अभी हम लोग जो बच्चे इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, अगर वो लास्ट तक रहते हैं तो हम लोग उनको पूरा जो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में भी हम लोग बताएंगे। तो कोई भी स्टूडेंट 20 से वेबिनार में नहीं जाएगा। अभी हम लोग लास्ट में क्वेरी सेशन भी करेंगे, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। देखिए जो 12th में मैथमेटिक्स के बच्चे हैं उनके पास कई ऑप्शन है, या आप बीटेक कर सकते हैं, आप डिप्लोमा कर सकते हैं, आप ITI कर सकते हैं। ITI और डिप्लोमा 10th के बाद भी होता है। आप BCA कर सकते हैं अगर आप मैथ्स के हैं, अगर आप आर्ट एंड कॉमर्स के हैं तो आप BBA कर सकते हैं। ये हमारा विजन कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट में चल रहा है, और विजन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में हम लोग MBA चला रहे हैं। ये हमारा कैंपस है, कानपुर कैंपस जो है, ये उसकी फोटोग्राफ है, आप कभी भी विजिट करिए और देख सकते हैं आप कॉलेज। ये हमारे अलीगढ़ कैंपस की फोटोग्राफ है, अलीगढ़ में भी हमारा कैंपस है, विजन ग्लोबल स्कूल भी है वहां पर। ये कुछ उसकी फोटोग्राफ है। अब मैं ब्रांचेस की बात करता हूँ। जो बच्चे, स्टूडेंट के मन में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि 12th के बाद हमें इंजीनियरिंग में अगर हम जाना चाहते हैं तो हम कौन सी ब्रांच लें, या कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं। देखिए बीटेक आप लोग भी जानते हैं 4 साल का होता है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कोर्स के बाद होता है ये। और इंडिया में जो बीटेक है ये 4 ईयर का होता है। इसमें अलग अलग ब्रांचेस होती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपका किस में इंटरेस्ट है। अगर आप को कंप्यूटर में काम करना पसंद है तो आप कंप्यूटर साइंस में जा सकते हैं, सिविल में कंस्ट्रक्शन फील्ड में जाना है कंस्ट्रक्शन में जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक में कम्युनिकेशन में आपको इंटरेस्ट है, इलेक्ट्रिकल में आप पावर प्लांट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी में जितनी भी जॉब निकलती है इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, मैकेनिकल में अगर आप प्रोडक्शन में ऑटोमोबाइल में जाना चाहते हैं, एग्रीकल्चर में ही बहुत स्कोप है। 3 नई ब्रांचेस हैं जो इस टाइम पे इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा चल रही है, इंडस्ट्री में जिसका बहुत ज्यादा स्कोप है। ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बेस पे है, इसके बारे में अभी बहुत कम लोगों को आइडिया है। अगर हम लोग साउथ सिटी की बात करें, दिल्ली, बैंगलोर की, हैदराबाद, वहां पर बहुत कॉलेजेस में सारी ब्रांचेस हैं, और इन सभी ब्रांचेस का एक अलग स्कोप है। आने वाला जो समय है वो पूरा इन्हीं पर इंडस्ट्री काम कर रही है, अभी भी इंडस्ट्री काम कर रही है। कई मिलियन जॉब जो है इसमें आने वाली है। AI और मशीन लर्निंग की अगर हम बात करें, या डेटा साइंस की, तो इंडस्ट्री जो इस पे अभी इस पे क्या क्या काम हो रहा है, क्या जॉब मिलती है, मैं आपको इसके बारे में ही बताऊंगा। पॉलिटेक्निक भी अगर आपका कोई फ्रेंड है, कोई करना चाहता है, 10th करा हुआ है तो पॉलिटेक्निक कर सकता है, और ITI भी कर सकता है। इसमें भी 2 ब्रांचेस होती है, फिटर एंड इलेक्ट्रीशियन। देखिए अगर आप AKTU से इंजीनियरिंग करते हैं तो आपके मन में सवाल होता है कि इसका एफिलिएशन कहाँ से होता है। देखिए कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे वो IIT हो या कोई भी कॉलेज हो, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। कहीं का भी सिलेबस हो, मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो IIT से भी बीटेक हैं, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज भी हैं, सिलेबस में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है। आपके पढ़ाई का लेवल क्या, आप किस तरह कॉलेज में मेहनत कर रहे हैं। अगर आप
कहीं पर भी आप जाते हो, अगर आप अच्छे से मेहनत करके इंजीनियरिंग करते हैं तो 4 साल बाद आप उसी लेवल पे आ जाएंगे जिस लेवल पे IIT का बंदा या कोई भी बच्चा हो। इंडस्ट्री में ये नहीं देखा जाता है आप कहाँ से हैं, इंडस्ट्री में सिर्फ काम देखा जाता है, और पढ़ाई और सीखना सब जगह पर सेम होता है जितने भी अच्छे कॉलेजेस हैं। और मैं आपको एक इंफॉर्मेशन ये दे दूं कि जो मेहनत है, ये जो आपकी जो पूरी पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड है, ये IIT में लोग आप देखते हैं कि सुनते हैं कि 40 लाख का पैकेज गया, 60 लाख का पैकेज गया, तो वो होता है कि बच्चे तो वहाँ पे इतना क्रीम बच्चा जा रहा है, जो इंडिया का सबसे क्रीम बच्चा है वहाँ पर जा रहा है, तो अपने आप ही जब इतना टॉप माइंड IIT में जा रहा है तो सिलेक्शन प्रोसीजर तो सही रहेगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आप किसी भी जगह पर जाते हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आपको जरूर एक अच्छी जॉब मिलेगी। और इंजीनियरिंग का अभी भी फ्यूचर है। लोग कहते हैं, कुछ लोग कह देते हैं जॉब नहीं है, ऐसा नहीं है, जॉब तो भरी पड़ी है। अगर आपके अंदर क्वालिटी, आपके अंदर टैलेंट है तो कंपनी बहुत जॉब दे रही है। तो AKTU से अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं तो ये AICTE से अप्रूव होता है, डिप्लोमा करते हैं BT से, और ITI करते हैं तो NCVT से अप्रूव होता है। अब मैं आपको बीटेक के कुछ ब्रांचेस के बारे में शॉर्ट में डिस्कस करता हूँ। देखिए, जो कोर ब्रांचेस है, आप कहीं पर भी जाएं पूरे इंडिया में, कोर ब्रांचेस जो होती हैं ये 5-6 होती हैं: एग्रीकल्चर, कंप्यूटर साइंस, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक। तो वन बाय वन मैं ब्रांच के बारे में डिस्कस करता हूँ। अगर आप बीटेक कंप्यूटर साइंस में आना चाहते हैं तो ये ब्रांच क्या होती है। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि कंप्यूटर साइंस का इस टाइम पे बहुत स्कोप है। जितनी भी ये मल्टीनेशनल कंपनी है, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, L&T, फेसबुक, गूगल, अमेजॉन, ये सभी कंप्यूटर इंजीनियर को हायर करती है। और इसमें जो कोर्सेज होता है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का होता है। आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं, किसी भी कंपनी में आप जाकर सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, और इसमें बहुत स्कोप है। आप देखिए, आज हम लोग जूम पे मीटिंग कर रहे हैं, ये भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बनाया है। अगर टेक्नोलॉजी में इतना चेंज ना होता तो क्या हम लोग इतने आसानी से आपस में जुड़कर बात कर सकते हैं, हम लोग वेबिनार कर सकते हैं। बदलाव हो रहा है टेक्नोलॉजी में, नई नई चीजें आ रही हैं, इंसानों का काम कम करके रोबोट्स और मशीनों से काम कराया जा रहा है। तो कंप्यूटर साइंस में बहुत स्कोप है। अगर आप इससे बीटेक करते हैं तो आप 4-5 लाख का अच्छा पैकेज आपको स्टार्टिंग मिलता है, 10 लाख 15 लाख से भी स्टार्टिंग होती है कंपनी के ऊपर। अगर आप अमेजॉन या गूगल जैसी कंपनी में जाते हैं, और इसमें बहुत स्कोप है। देखिए, आपको जो पढ़ाया जाता है इस टाइम पे, तो इसमें बहुत सारी चीजें नई आ गई हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके प्रोग्रामिंग में बहुत सारे चेंजेस आ गए। पहले C थी, जावा थी, अब पाइथन आ गई है। मशीन लर्निंग पे चीजें आ गई हैं, डेटा साइंस पे बहुत काम हो रहा है। तो कंप्यूटर साइंस के बारे में आप प्लान कर सकते हैं। सिविल भी एक बहुत पुरानी ब्रांच है, बहुत अच्छी ब्रांच है। इसमें कंस्ट्रक्शन फील्ड में अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग में जाना है तो आप कंस्ट्रक्शन में जा सकते हैं। डिजाइन इंजीनियर, साइट इंजीनियर, जितने भी मेट्रो बन रही है, कहीं पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, दुबई जैसी सिटी में आप देखिए कैसी कैसी बिल्डिंग बन रही है हर जगह पर। L&T वगैरह कितना काम कर रही है, इस पे मेट्रो बन रही है। तो सिविल की भी बहुत ज्यादा जॉब निकलती है मार्केट में। मैकेनिकल भी एक सदाबहार ब्रांच है। मैकेनिकल में आप प्रोडक्शन इंजीनियर, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, प्रोडक्शन कंपनी में जा सकते हैं, रेलवे वगैरह में, गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं। डिजाइन इंजीनियर, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मैकेनिकल में भी बहुत सारी चेंजेस आ रहे हैं इस टाइम पे। कंपनीज में इंटरनेट ऑफ थिंग, IoT से बहुत ज्यादा काम हो रहा है। इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग आ गई है। मैं अभी आपको IoT के बारे में थोड़ा बताऊंगा। तो मैकेनिकल वगैरह में भी काफी ये अच्छी ब्रांच है, इसमें आप प्लान कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल गवर्नमेंट सेक्टर के लिए एक अच्छी ब्रांच है। अगर आपको पावर ग्रिड में, NTPC में, इन सब जगह पर आपको जाना है, इलेक्ट्रिसिटी में आपको इंटरेस्ट है, बिजली विभाग में बहुत सारी जॉब है जो इलेक्ट्रिकल में निकल रही है। और सिस्टम इंजीनियर की बहुत सारी जॉब है जो इंडिया से बाहर भी है। तो एरोस्पेस में, इस ऑटोमेशन में आप इसमें भी एक सोच सकते हैं। एग्रीकल्चर भी एक कोर ब्रांच में आती है। एग्रीकल्चर, देखिए, इसको लोग जानते नहीं है ज्यादा, लेकिन एग्रीकल्चर जो है एक बहुत अच्छी ब्रांच है। इसमें आपका गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज्यादा जॉब है, इसको लोग जानते नहीं, इसमें भीड़ बहुत कम है। अगर आप इस ब्रांच से बीटेक करते हैं तो मेरा ये मानना है आपको 4 से 5 लाख की नौकरी स्टार्टिंग में आसानी से मिलेगी। और आप अगर थोड़ा मेहनत कर ले गए तो आप गवर्नमेंट में भी जा सकते हैं। फूड में बहुत ज्यादा जॉब है। एग्रीकल्चर में आपका जो है बहुत सारा स्कोप है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ट्रैक्टर्स कंपनी से लेके ड्रोन से लेके बहुत ज्यादा काम हो रहा है एग्रीकल्चर में। तो ये कुछ कोर ब्रांचेस थी जो जिसका जो है स्कोप है और हमेशा रहेगा।
लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने माइंड को एक बार फिर से सोचें नई ब्रांचेस के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि 3 नई ब्रांचेस इस टाइम पे और आई हुई हैं, जो कि IITs में है, और कानपुर में हमारा पहला कॉलेज है जहां पर ये 3 नई ब्रांचेस हम लोग लेकर आए हैं। ये तीनों ब्रांचेस जो है बैंगलोर, हैदराबाद वगैरह में कुछ यूनिवर्सिटीज में भी हैं, और इससे बीटेक करने के बाद आप ये मान के चलिए कि बहुत अच्छा कैरियर आपका है। ये तीनों ब्रांचेस कौन कौन सी है? सबसे पहली ब्रांचेस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। ये तीनों ब्रांचेस कंप्यूटर साइंस की स्पेशलाइज्ड ब्रांच है। बीटेक CS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, बीटेक CS डेटा साइंस, बीटेक CS इंटरनेट ऑफ थिंग। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ टेक्नोलॉजीज के बारे में भी देखेंगे, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं। देखिए ये तीनों ब्रांचेस हैं। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI का मतलब क्या है? आप लोग के माइंड में बार बार सवाल आ रहे होंगे कि हम लोग इतनी देर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं, ये है क्या? देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि हम लोग अपनी मशीन को, हम लोग अपने कंप्यूटर को इस तरह से डेवलप करते हैं कि मशीन जो है इंसानों की तरह सोच सके और काम डिसीजन ले सके। AI का मतलब होता है कि हम लोग जो है मशीनों को इस तरह से ट्रेन करते हैं, इस तरह से हम लोग उसको डेवलप करते हैं कि वो इंसानों की तरह सोच सके और जो है डिसीजन ले सके। अब मशीन लर्निंग में आप क्या क्या पढ़ेंगे, मशीन लर्निंग का क्या स्कोप है? देखिए इस टाइम पे मैंने आपको बताया कि अगर जो इसके बारे में समझ जाएगा और इससे बीटेक कर लेगा तो उसका 5-6 लाख से नीचे पैकेज नहीं मिलना है, स्टार्टिंग 10-12 लाख से है। अगर आप सीनियर पोस्ट में तो आप 18 से 20 लाख के पैकेज में पहुंच सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। आप देखिए, आप लोग गूगल चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, आप लोग यूट्यूब चलाते हैं। आपने कभी देखा है कि आप गूगल पे अगर आप कुछ सर्च करते हैं तो आप देखते होंगे कि उसकी जो एड है वो आपको हर जगह पे दिखाता है। मान लिया अगर आपको एक शैम्पू खरीदना है और आपने शैम्पू को जो है सर्च करा गूगल पे, तो आप देखते होंगे शैम्पू की एड आपको फेसबुक पे भी दिखाएगा और यूट्यूब पे भी दिखाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डेटा को एनालाइज करा जा रहा है। आप दिन भर जो भी मोबाइल में चला रहे हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनी है वो आपके डेटा को एनालाइज कर रही है कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है, आप क्या चीज को ज्यादा सर्च कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड आपको एडवर्टाइज दिखाई जाती है, उसी से रिलेटेड आपको एडवर्टाइज दिखाई जाती है जिससे आप उस प्रोडक्ट को खरीद सको। तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड डेटा साइंस का बहुत यूज हो रहा है आपका एनालिसिस के लिए। अभी मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। आप लोग नेटफ्लिक्स देखते होंगे, नेटफ्लिक्स एक वीडियो का एक, जैसे आपका अमेजॉन प्राइम होता है इसी तरह नेटफ्लिक्स होता है, बहुत सारे लोग इसको चलाते भी होंगे। देखिए नेटफ्लिक्स के जो रिसर्चर है, जो साइंटिस्ट है नेटफ्लिक्स के, वो मानते हैं कि 80% जो है हमारी जो वीडियोस है वो हम लोग के रिकमेंडेशन पे लोग देखते हैं। मतलब जो कंपनी चाह रही है वो आप देख रहे हैं, मतलब आप अपनी चॉइस के बेस पे वीडियो नहीं देख रहे हैं, आपको जो कंपनी चाह रही है वो आप देख रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो आपको इतने रिकमेंडेशन भेजते हैं, वो ये देख लेते हैं कि आपको क्या पसंद है। देखिए आप जो चीज सर्च करोगे, आप यूट्यूब पे देखते हैं ना कि आप जो सर्च करते हैं आपको उसी से रिलेटेड वीडियो आने लगती है। तो यहाँ पर क्या यूज हो रहा है? मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या होता है कि मशीन देख रही है कि आपको क्या पसंद है, तो नेटफ्लिक्स भी देखती है कि आपको क्या पसंद है, उसी से रिलेटेड आपको रिकमेंडेशन आते हैं। तो नेटफ्लिक्स का भी नेटफ्लिक्स भी एक मशीन लर्निंग का ही एक आपका एग्जाम्पल है। फेसबुक पे आप लोग देखते होंगे ऑटो टैगिंग होती है। फेसबुक पे आप लोग देखते होंगे जब आप किसी को टैग करते हैं तो उसका नाम ऑटोमेटिक आ जाता है। ऐसा क्या होता है? वहां पर डीप लर्निंग यूज होती है। मशीन पहले से आइडेंटिफाई कर लेती है किसका फेस है। तो आप देखिए कि इस टाइम पे कितना ज्यादा यूज हो रहा है इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का। ड्राइवरलेस कार, आपने सुना होगा ड्राइवरलेस कार आ गई है, टेस्ला ने बना भी दी है। बिना ड्राइवर के कार चलेगी। मार्केट में एक एलेक्सा आया हुआ है, वॉइस रिकॉग्निशन के बेस पे आप उससे कुछ भी बोलेंगे वो सर्च करके गूगल से आपको दे देगा। सर्च करना, आप एलेक्सा नाम डालना गूगल पे, यूट्यूब पे डालना, ड्राइवरलेस कार आ गई है। ये बिना ड्राइवर की कार चलेगी। कैसे चलेगी? मशीन लर्निंग से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो चीजें कहां तक बढ़ रही है, इंडस्ट्री में किस लेवल तक काम हो रहा है, आप सोच सकते हैं कि आने वाला 2-3-4 साल में कितना चेंजेस आ रहा है। अगर हम लोग आज से 15-20 साल पहले की बात करें तो टेक्नोलॉजी में इतना ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ था जितना अब हो गया है। तो
मार्केट में बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, आ रही हैं। तो अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बीटेक करते हैं तो आप मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हैं, डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। नेट पे आप डालना, मैं कोई अपने तरफ से बना के बात नहीं कह रहा हूँ, आप नेट पे डालना डेटा साइंस का एवरेज पैकेज क्या है, एनुअल पैकेज, आपको 17 से 18 लाख का पैकेज मिलेगा डेटा साइंटिस्ट का। इसी तरह जो टॉप कंपनी है वो भी इन सब पे बहुत काम कर रही है, एआई पे, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ऑरेकल। क्लाउड कंपनी है अमेजॉन वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट, अजूर, अलीबाबा, चाइना की जैकमा की बहुत बड़ी कंपनी है, आप लोग जानते होंगे। ये सब आईबीएम जैसी कंपनी क्लाउड पे काम कर रही है। कंसल्टेंसी जो है डेवलाइट वगैरह बहुत काम कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मार्केटिंग, हर जगह पर बहुत यूज हो रहा है। तो ये ओवरऑल जो ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, इसका बहुत स्कोप है आने वाले समय में। जो इसके बारे में जान गया वो ये मान लीजिए कि वो आगे सोचेगा कि मैंने एक सही डिसीजन लिया था। नेक्स्ट ब्रांच है आर्टिफिशियल आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग। इंटरनेट ऑफ थिंग में मैंने आपको बताया मैकेनिकल में बहुत यूज हो रहा है, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग का। इंटरनेट ऑफ थिंग का मतलब होता है कि हम लोग इंटरनेट से मशीन को जोड़ते हैं, डिवाइस को। जैसे अभी तक आपने सुना होगा कि मतलब आपने कई जगह पे देखा होगा, सुना होगा, जो फेसबुक के ओनर है मार्क जुकरबर्ग, उनका जो घर है ये पूरा इंटरनेट ऑफ थिंग से कनेक्टेड है। मतलब उनके घर में अगर कोई दरवाजे पे आता भी है, गेट पे, तो उनको पहले से पता चल जाता है कौन हमारा रिलेटिव आया है। कैमरा लगा रखा है, डीप लर्निंग के थ्रू एनालाइज कर लेता है फेस कौन आया हुआ है। इंटरनेट ऑफ थिंग का मतलब होता है कि हम लोग इंटरनेट से मशीनों को जोड़ते हैं और मशीन जिससे आपस में कम्युनिकेट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इसका होम ऑटोमेशन में बहुत यूज हो रहा है, जैसे मान लिया कि आपके घर में एसी लगी है और आप अपने घर में जाने से पहले एसी को बंद करना चाहते हैं, तो आप मोबाइल से ही बंद कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके घर में दरवाजे में या आपकी जो अलार्म होती है, आप लोग सुबह मॉर्निंग में उठने के लिए अलार्म लगाते हैं, वहां पर भी इंटरनेट ऑफ थिंग का यूज होता है। वो आपको बहुत कुछ उसमें होता है ऑप्शन, काफी डिटेल में मैं आपको इन फ्यूचर का भी बताऊंगा। तो पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, पेशेंट जो होता है हॉस्पिटल में इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। पेशेंट को एक बैंड पहना दिया जाएगा, अगर उसको मान लिया हार्ट अटैक आने वाला है तो ये डिवाइस पहले से बता देगा और डॉक्टर को इंफॉर्मेशन दे देगा कि इस पेशेंट का हार्ट अटैक आने वाला है और डॉक्टर एम्बुलेंस को भेज देगा। तो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है हर जगह पर इन तीनों ब्रांचेस का। देखिए डेटा साइंस क्या है, डेटा साइंस भी एक ब्रांच है इसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे, और इसका आने वाले समय में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, अभी भी यूज हो रहा है। मैंने आपको बताया डेटा एनालिटिक्स बहुत ज्यादा यूज हो रही है इसकी। अगर आप इस चार्ट को देखें तो आपको ये आइडिया होगा कि इस टाइम पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में पर मिनट कितना ज्यादा डेटा यूज हो रहा है। मतलब डेटा साइंस की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इतना ज्यादा डेटा इंटरनेट पे आ गया है। अगर हम लोग 15 साल पहले की बात करें तो किसी के पास मोबाइल नहीं होता था मल्टीमीडिया। आज के समय में हर आदमी मोबाइल यूज कर रहा है। कंपनी को, लोगों को पकड़ना बहुत आसान है। अगर उसको अपनी कोई एडवर्टाइज करनी है या कुछ भी करना है तो उसको टारगेट करना बहुत इजीली है। क्यों इजी है? क्योंकि अगर आप देखें फेसबुक पे 1.3 मिलियन लोग डेली लॉगिन करते हैं 1 मिनट के अंदर। अगर आप यूट्यूब की बात करें तो 4.7 मिलियन वीडियो देखते हैं डेली 60 सेकंड के अंदर। गूगल ऐप की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें, ट्विटर की बात करें, टिकटॉक की बात करें, अमेजॉन इको की बात करें, स्नैपचैट की बात करें, तो पर मिनट कितना ज्यादा डेटा इंटरनेट पे यूज हो रहा है। तो डेटा साइंस की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए डेटा साइंस का मतलब होता है कि डेटा को एनालाइज करना और डिसीजन लेना। डेटा अवेलेबल होता है इंटरनेट पे। जैसे मान लिया कोई कंपनी है, ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। कोई कंपनी है, वो अपना बिजनेस इंडिया से दुबई में करना चाहती है। मान लिया उसकी लेदर की जैकेट की कंपनी, उसको लेदर की जैकेट इंडिया से बाहर दुबई में बेचना है। ठीक है, दुबई में तो ठंड पड़ती नहीं है कि नहीं? तो हम लोग कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लिया कि कोई कंपनी है, कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है। मान लिया किसी की कोई शर्ट की कंपनी है, कोई भी चीज की कंपनी है, उसको कोई प्रोडक्ट जो है अपना दुबई में बेचना है, तो वो वहां का पहले एनालिसिस करेगी कि वहां पर ये प्रोडक्ट बिकता है कि नहीं, कितनी कंपनी वहां पर है, किस किस जगह पर कितनी डिमांड है। तो ये डेटा गूगल पे अवेलेबल है। कैसे अवेलेबल है? आप लोग जो सर्च करते हो उसका डेटा गूगल ले लेता है, ठीक है। उसके बेस पे वो डिसीजन मार्केटिंग कंपनी उससे एनालाइज करती है कि हमारे कस्टमर को हम कैसे टारगेट करें। अगर हम लोग जॉब की बात करें तो इसमें बहुत सारी जॉब आने वाली है। आप देखिए कितना ज्यादा पैकेज है।
अगर हम लोग एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात करें तो 2 लाख से 10 लाख का पैकेज मिलता है, लेकिन अगर हम डेटा साइंटिस्ट की बात करें तो उसको 19 लाख तक पैकेज जाता है। तो बहुत ही ज्यादा स्कोप है इसमें आने वाले समय में। इन तीनों ब्रांचेस के बारे में आप सोच सकते हैं। अब मैं आपको शॉर्ट में इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की कुछ और बातें बताता हूँ। देखिए, अगर आप सिविल ब्रांच में भी आना चाहते हैं तो वहां पर भी इन तीनों ब्रांचेस का बहुत यूज हो रहा है। ये जो नई टेक्नोलॉजी है, अब वो टाइम नहीं रह गया कि आपको पुरानी चीजें पढ़ाई जाएंगी। अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं तो ड्रोन के थ्रू आप एनालिसिस कर सकते हैं कि काम सही से हो रहा है कि नहीं। वर्चुअल रियलिटी के थ्रू आप नेट पे डालना। हमारा यूट्यूब चैनल है, अभी मैं आपको अपने सारे फेसबुक एंड यूट्यूब दिखा देता हूँ। आप हमारे चैनल पे जाके सारा कुछ सर्च कर सकते हैं, हम लोग इसका बहुत कुछ डाला हुआ है। तो कंस्ट्रक्शन फील्ड में भी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का। एग्रीकल्चर रोबोट आ गए हैं, एग्रीकल्चर में ऑटोनोमस ट्रैक्टर, इन सब जगह पर बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। इलेक्ट्रिकल में बहुत ज्यादा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, वर्चुअल रियलिटी का, आई ट्रैकिंग सिस्टम, स्मार्ट इलेक्ट्रिकल ग्रिड आ चुके हैं। मैकेनिकल में आईओटी का, 3D प्रिंटिंग का यूज हो रहा है, 3D प्रिंटिंग का यूज करके हाई स्पीड मशीनरी आ गई है। तो बहुत सारी जो है चेंजेस हो रहे हैं धीरे धीरे हर जगह पर। तो आप लोग को देखिए स्टूडेंट, एक सही डिसीजन आपको लेने की बहुत जरूरत है यहाँ पर। और आप लोग को मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सभी लोग का अच्छा रिजल्ट है, अच्छी रैंक है। और इन फ्यूचर आप अगर हमसे कुछ हेल्प लेना चाहते हैं, हमारी टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग आप लोगों के लिए एक अच्छा डिस्काउंट चला रहे हैं फीस में। आप लोग अगर 0 से 3, देखिए इस टाइम पे कोरोना चल रहा है, इधर उधर भागने में लोग इंटरेस्ट नहीं रखेंगे। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है तो आप एक बार विजन ग्रुप के लिए भी सोच सकते हैं। हम लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, हर चीज कराते हैं। हमारे वहाँ लगभग 2000 बच्चा है। कानपुर में हम लोग पढ़ाई में बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। हमारे वहाँ हर साल यूनिवर्सिटी मेरिट लिस्ट में बच्चे आते हैं। अगर आप आपकी जो भी रैंक आती है, आप हम लोग से कांटेक्ट करिएगा। एक अच्छा डिस्काउंट आपको मिल सकता है, आप बीटेक कर सकते हैं किसी भी ब्रांच में। और हम लोग हर वो चीज करा रहे हैं जो आईआईटी से लेके एनआईटी लेवल तक की जा रही है। हमारी जो पढ़ाने का तरीका है वो सारा कुछ बहुत ही अलग है। हम लोग सर्टिफिकेशन कोर्स भी कराते हैं। पढ़ाई के अलावा हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, पीसीबी डिजाइनिंग, डेटा साइंस, मतलब पढ़ाई का जो सिलेबस है वो तो अलग है। हम लोग अलग से ये कोर्सेज भी कराते हैं बच्चों को, जिससे उनको इंडस्ट्री में एक अच्छी जॉब मिल सके। जो इंडस्ट्री में जो चीजें चल रही हैं वो हम लोग और भी उनको सिखाते हैं। ये कुछ फोटोग्राफ हैं, आप देख सकते हैं कॉलेज की लाइब्रेरी के, लैब के। हम लोग गेस्ट लेक्चर बहुत कराते हैं। इंडस्ट्री से हम लोग अलग अलग लोगों को बुलाते हैं, पूरे इंडिया से, बैंगलोर, हैदराबाद, अलग अलग जगह से हम लोग इंडस्ट्री में जो लोग हैं उनको बुलाते हैं। इस टाइम पे हम लोग ने वर्चुअली बहुत सारे इवेंट कराए हुए हैं। आप हमारे फेसबुक पेज पे जाके देख सकते हैं, यूट्यूब पे, वेबसाइट पे, मैं भी आपको सारा लिंक बता दूंगा। ये हम लोग इंडस्ट्री विजिट भेजते हैं। अभी तो कोरोना चल रहा है, उससे पहले हम लोग बच्चों को इंडस्ट्री में भेजते थे विजिट्स। हमारे वहाँ एनुअल फंक्शन जो होते हैं उसकी कुछ पिक्स हैं। प्लेसमेंट, देखिए बच्चों के मन में पहला सवाल होता है कि जॉब मिलेगी कि नहीं। हम लोग प्लेसमेंट में बहुत फोकस करते हैं। हमारे वहाँ लगभग 85 से 90% तक बच्चे प्लेस हो जाते हैं। इन्फोसिस से लेके, विप्रो से लेके, टीसीएस से लेके, रॉयल एनफील्ड, हर जगह पर बच्चे प्लेस हैं। ये कुछ फोटोग्राफ है। हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी में एकेटीयू में हर साल मेरिट लिस्ट में आते हैं। और कुछ बच्चे हमारे इस बार एकेटीयू ने एक प्रोजेक्ट का कंपटीशन कराया था जिसमें हमारे विजन ग्रुप के बच्चों ने फर्स्ट प्राइज जीता था ऑल ओवर यूपी। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे ग्रुप के लिए कि हमारे बच्चे पूरे यूपी में फर्स्ट प्राइज जीता था। ये अलग अलग इवेंट कॉलेज में होते हैं, स्पोर्ट मीट, उसकी फोटोग्राफ है। एल्यूमिनाई, हमारे एल्यूमिनाई इंडिया और इंडिया से बाहर भी जॉब कर रहे हैं। आप इनसे बात करके भी चेक कर सकते हैं बच्चे कहाँ कहाँ पर है। दुबई से लेके ऑस्ट्रेलिया तक बच्चे जॉब कर रहे हैं हमारे वहाँ के। विजन ग्रुप में क्लब भी चलते हैं हमारे वहाँ स्टूडेंट के लिए, गेट क्लब, म्यूजिक डांस क्लब। ये कुछ फंक्शन है जो हम लोग एनुअली कराते हैं। टेक्निकल इवेंट, मैं आपको एक शॉर्ट में, देखिए फ्रेशर पार्टी, फेयरवेल पार्टी, ये सब कुछ। तो कॉलेज में आपको पढ़ाई के अलावा हर वो चीज कराई जाएगी जो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आती है। फ्रेशर पार्टी, बैंड, एनुअल फंक्शन, म्यूजिकल नाइट, सब कुछ आप इंजॉय करेंगे। एक
तो ये एक कॉलेज में सब होता है, आप किसी भी कॉलेज में आते हैं। हम लोगों ने एग्रीकल्चर मेला कराया था, ये बहुत बड़े लेवल पे, ये सब उसकी कुछ फोटोग्राफ हैं, आप देख सकते हैं। बाकी डिटेल में आप हमारी वेबसाइट भी जा सकते हैं, हमारी अलीगढ़ की कुछ फोटोग्राफ हैं। अब मैं आपको शॉर्ट में अपनी जो कुछ लिंक्स है मैं आपको उसको दिखा देता हूं, इसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। तो आप लोग इन फ्यूचर अगर आप हमसे कनेक्ट रहना चाहते हैं और कुछ चीजें अगर आपको देखनी है, जैसे अभी हमने आपको शॉर्ट में डेटा साइंस के बारे में बताया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, अगर आप इसमें डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं और हमारी वेबसाइट में आपको इसमें सारा कुछ डिटेल में मिलेगा। वेबसाइट हमारी क्या है और फेसबुक पेज और आपका जो यूट्यूब चैनल है मैं आपको उसके बारे में भी दिखा देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए जो फेसबुक पे भी हम लोग ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन रखी दी हुई है, तो आप फेसबुक पेज भी हमारा सर्च कर सकते हैं। और फेसबुक पे आपको क्या टाइप करना होगा, फेसबुक पे आपको लिखना होगा विजन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर। देखिए ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप थोड़ा सा अवेयर हो जाएं कि क्या क्या चीजें होती हैं। अगर एक कॉलेज की बात करें तो वहां पर क्या क्या चीजें कराई जाती हैं, तो फेसबुक पेज के थ्रू आपको इससे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और आप इस फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं। ये हमारा फेसबुक पेज है विजन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर का, और इस फेसबुक पेज में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। जो भी हम लोग जितने भी इवेंट करा रहे हैं, जो भी हम लोग करा रहे हैं, वो सारा कुछ आप इस फेसबुक पेज में आके देख सकते हैं। फेसबुक के पेज के अलावा जो आपके पास और भी हमारे जो लिंक्स है वो आप फेसबुक पेज में आपको हम लोग ने जितने भी वेबिनार कराए हैं, जितने भी चीजें हम लोग ने कराई हैं, ये आप इसको देख सकते हैं। और कौन कौन से कोर्सेज हैं, क्या क्या हम लोग करा रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। हम लोग ने इस बार 34 वेबिनार कराए, आप फेसबुक पेज पे जाके आप डिटेल में देख सकते हैं। फेसबुक पेज को आप लाइक भी कर दीजिएगा। इसी साथ साथ हमारा जो यूट्यूब चैनल है, इसमें हम लोग ने बहुत सारी वीडियो डाली हुई है, इंजीनियरिंग से लेके बहुत सारी वीडियोस हैं। अगर आप किसी भी वीडियोस को देखना चाहते हैं, किसी भी टेक्नोलॉजी के बारे में आप सर्च करना चाहते हैं, आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं। हमारा जो यूट्यूब चैनल है ये हमने आपको स्क्रीन शेयर किया है, विजन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में। इसमें बहुत सारी वीडियो हैं। अभी सेक्रेटरी सर का लेक्चर था 5G टेक्नोलॉजी का, बीटी की सिविल ब्रांच का लेक्चर था, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, अजूर का, डेटा साइंस, 3D प्रिंटिंग का, माइक्रोसॉफ्ट बैंगलोर से कंपनी का था, इंटरनेट ऑफ थिंग का। बहुत सारी जो है इसमें वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार आप विजिट करें। ये आपकी नॉलेज के लिए है, आपको इसमें एक आइडिया होगा इस टाइम पे इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। आप सभी लोग इस वीडियो को देखें। और जो हमारा वेबसाइट पेज है आप वहां पर भी विजिट कर सकते हैं। जो हमारा वेबसाइट पेज है वो vitk.vision.org.in है। आप इसमें जाके सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। स्टूडेंट डेवलपमेंट में हम लोग क्या क्या करा रहे हैं, प्लेसमेंट, हॉस्टल लाइफ, एकेडमिक में हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, हर इंफॉर्मेशन आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी हुई है। तो स्टूडेंट ये ओवरऑल मैंने आपको हर चीजें बता दी है जो एक कॉलेज में होती है, इंजीनियरिंग कॉलेज में। अब डिसीजन आपके पास है कि आपको क्या करना है, किस ब्रांच में करना है, कहाँ जाना है। तो अभी हम लोग क्वेरी सेशन करते हैं, फिर मैं आपको सर्टिफिकेट के बारे में बताऊंगा। तो इन केस आपको कुछ भी पूछना है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम लोग उसका आंसर करेंगे। कोई भी क्वेरी आपके मन में हो, कुछ भी सवाल हो, अभी हम लोग 5 मिनट का टाइम आपको देते हैं, फिर हम लोग इस प्रोग्राम को एंड करेंगे। तो आपके मन में जो भी सवाल है, आप जो भी पूछना चाहते हैं, आपने काफी लंबा प्रेजेंटेशन सुना जिससे आपको एक आइडिया मिला होगा। इनकेस आप कुछ पूछना चाहते हैं, चैट बॉक्स आप लोग देखिए नीचे मोबाइल में चैट का ऑप्शन आ रहा होगा, आप वहां पर जाके मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं जो भी आपको पूछना है, जो भी आपके मन में सवाल है, बीटेक को लेके, कोर्सेज को लेके, ब्रांच को लेके, किसी में भी आप जाके जो है पूछ सकते हैं। तो बेटा आप सभी लोग चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चन पुटअप कर दीजिए और हम लोग आपको 1 बाय 1 अभी इसका आंसर करेंगे।
जो भी आपके मन में सवाल है। और सभी लोग से उम्मीद है, प्रदीप कुमार जी ने पूछा है कि बीटेक में कितनी फीस है। तो प्रदीप जी, बीटेक की जो फीस है वो हमारे वहाँ की 80,000 है, और हम लोग UPSEE के बच्चों के लिए बहुत अच्छा डिस्काउंट देते हैं आपकी रैंक के ऊपर। अगर मैं आपको अभी एक चार्ट दिखाया था कि अगर आपकी रैंक अच्छी आती है तो मैं आपको हम लोग आपको एक अच्छा डिस्काउंट देंगे। और डिस्काउंट जो होगा वो आपका, आप ये मान के चलिए कि अगर आपके फादर गवर्नमेंट में नहीं है तो 80,000 जो फीस है उसमें 40,000 स्कॉलरशिप का लेस हो जाएगा, और उसके बाद आपको जो डिस्काउंट मिलेगा वो 20,000 करीब और मिल जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि जो कॉलेज की फीस होगी वो UPSEE क्वालिफाइड के लिए 15 से 20,000 के बीच में होगी, और 10,000 एग्जाम फीस होगी। तो आपकी रैंक किस हिसाब से आती है उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन मैं आपको एक अप्रॉक्स अमाउंट बता देता हूँ कि अगर आप इंजीनियरिंग की तरफ आना चाहते हैं विजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में, तो आपकी जो फीस पड़ेगी वो 25,000 से 30,000 के बीच में अप्रॉक्स खर्चा आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ UPSEE के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षित का विच इज बेटर, CS कोर और CS स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट सिलेबस। हर्षित, मैंने आपको अभी इसके बारे में देखिए डिटेल में काफी बताया है कि जो कोर ब्रांच है, कोर ब्रांचेस में आपको सभी कुछ बताया जाएगा, लेकिन जो स्पेशलाइज्ड ब्रांच है मैंने आपको खुद दिखाया अभी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग वगैरह में कितना स्कोप है। आपको जो इसका जो फील्ड जो आपको इसमें जो आपको बताया जाएगा वो पूरा का पूरा इसी से रिलेटेड होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड होगा। और There's a very interesting question कि difference between AI and software. Now software तो एक normal कोई भी चीज से related हो सकता है। Software आपका कोई भी काम अगर हो रहा है तो वो software हुआ। आपका Microsoft Word एक software है, Windows एक software है। AI एक technology है जहां पे सॉफ्टवेयर अपना डिसीजन खुद लेता है। तो AI इज मोर ऑफ अ टेक्नोलॉजी जिसको यूज करके काफी सारे सॉफ्टवेयर बनते हैं। इन AI यूज करके सॉफ्टवेयर के अलावा प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, तमाम सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। आपका एलेक्सा है जो AI यूज करता है। तो गंगेश जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था आपका, थैंक्स फॉर आस्किंग। AI इज अ टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर इज अ पर्टिकुलर कोड या प्रोग्राम जो कोई पर्टिकुलर काम करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका AI के बारे में आप पूछ रहे थे कि CS कोर एंड CS स्पेशलाइजेशन के बारे में पूछ रहे हैं हर्षित। तो हर्षित, स्पेशलाइज्ड ब्रांच जो होगी उसमें आपको उसी फील्ड से रिलेटेड ही सिलेबस होगा सारा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग में आपको सबसे पहले पाइथन पढ़ाई जाएगी। पाइथन के साथ साथ आपको जितनी भी मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम होगी वो सारा कुछ आपको कवर किया जाएगा। डीप लर्निंग इसी में इंक्लूड होगी। और जो सिलेबस होगा, देखिए फर्स्ट ईयर तो कॉमन होगा, लेकिन सेकंड ईयर थर्ड ईयर से आपको कोर से ब्रांच जो स्पेशलाइज्ड ब्रांच है इससे रिलेटेड सारी चीज़ें कराई जाएगी। तो आप लोग इसके बारे में प्लान करिए। मैं आपको उसके बारे में आप वीडियो के थ्रू भी देख सकते हैं, हम लोग ने बहुत कुछ डाला हुआ है यूट्यूब पर। आप में से जितने लोग फीस के बारे में पूछ रहे हैं आप प्लीज कॉल कर लीजिएगा, आपके पास कॉलेज का नंबर है तो इंडिविजुअल लेवल पे आपको बता देंगे। उसको आप बार बार पूछ रहे हैं, आप फीस के बारे में यहाँ कर लें, आप यू कैन कॉल, आपको नंबर दे रहे हैं उस पर आप कॉल कर सकते हैं, यू कैन आस्क दैट थिंग आपको, क्योंकि इंडिविजुअल आपकी फीस आपकी कई और चीजों पे डिपेंड करती है, उस बेसिस से बता देंगे। एक पूछ रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर में डिफरेंस। ये टर्मिनोलॉजी है, पहले उसको इंजीनियर बोलते थे अब डेवलपर बोलते हैं। एज सच अगर आप डेप्थ में जाएंगे थोड़ा बहुत डिफरेंसेस लोग बताते हैं, लेकिन इफेक्टिवली सेम थिंग। इंजीनियर थोड़ा क्योंकि इंजीनियरिंग में आर्किटेक्चर भी होता है, कई अलग फैक्टर्स होते हैं। डेवलपर का मतलब डिजाइनर से ज्यादा क्लोजली एसोसिएटेड होता है, लेकिन इंजीनियर को डेवलपर भी बोलते हैं। एक और सवाल बार बार लोग पूछ रहे हैं कि CS और स्पेशलाइजेशन में, देखिए मैंने आपको बोला था इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर का सिलेबस ऑलमोस्ट 80% कॉमन होता है एंड फाइनल ईयर में भी 20-25% कॉमन होता है। तो अगर आप AI का स्पेशलाइजेशन लेंगे, AI जो है वो सब्जेक्ट पूरा AI एंड मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग AI का पोर्शन है, तो उसमें जो इफेक्टिवली उसमें और CS में डिफरेंस होगा वो करीब 20% का डिफरेंस होगा।
बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होगा एकदम सीएस की बाकी चीजें पढ़ा नहीं रहे हैं। आज की डेट में एआई और मशीन लर्निंग का स्पेशलाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत जॉब्स हैं। अगर आपका कोडिंग में इंटरेस्ट है तो आप एआई का स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, दैट इज ऑलवेज गुड। लेकिन आई एम रिपीटिंग, ऐसा नहीं है कि आप एआई का स्पेशलाइजेशन करेंगे तो आपको डेटाबेस नहीं पढ़ाया जाएगा, कुछ और नहीं पढ़ाया जाएगा, थोड़ा सा फर्क होगा। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सकते हैं। लाइफ में कई बार थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है, नो रिस्क मींस नो गेन, सो दैट इज अ पार्ट दैट इज इंटरेस्टिंग। कंप्यूटर साइंस का बहुत स्कोप है, कंप्यूटर साइंस एक बेसिक हो गई है, लोग पूछ रहे हैं। तो कंप्यूटर साइंस का स्कोप ना केवल कंप्यूटर साइंस में है, हर ब्रांच में है। मैंने भी अपने प्रेजेंटेशन में भी आपको बताया था कि आप अगर सिविल भी कर रहे हो, मैकेनिकल भी कर रहे हो, अगर आप थोड़ा कंप्यूटर जानते हैं, आज की डेट में हेल्थ केयर के जितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उन सब में भी कंप्यूटर का बहुत यूज हो रहा है। तो कंप्यूटर साइंस का हर जगह यूज है, आपको थोड़ा बहुत आज की डेट के बाद आना ही चाहिए, आप किसी भी फील्ड में हो। जरूरी नहीं कि आप स्पेशलाइजेशन करो कंप्यूटर में, आप अगर मैकेनिकल में, सिविल में, एग्रीकल्चर में है तो भी आपको कंप्यूटर आना चाहिए, वो एक बेसिक आता जा रहा है। There is a question how to become a software developer through BTech और BCA. See, सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए आपको फर्स्ट ईयर से अगर आप ज्वाइन करते हो कोई एक लैंग्वेज, जैसे कि रेहान सर ने बोला पाइथन, या हम लोग के यहाँ .NET C#, इस पे आप थोड़ा वर्क करो एंड प्रोजेक्ट को सीरियसली लीजिए। आप प्रोजेक्ट डिजाइनिंग करिए, जहां फ्रंट एंड बैक एंड, या अजूर प्लेटफॉर्म पे अभी हम लोग ने अपने यहाँ, हमारे वेबसाइट में आप चेक कर सकते हैं, अजूर का हम लोगों ने पूरा करा था जहां पे एआई और कॉग्निटिव लर्निंग थी। तो अगर आप प्रोजेक्ट बनाते हैं जो रियल लाइफ में एप्लीकेबल है तो दैट इज समथिंग जो आपको हेल्प कर सकता है डेवलपर में, डिजाइनिंग के पोर्शन से। तो आप जहां भी ज्वाइन करें आप प्रोजेक्ट को जरूर बहुत सीरियस लें एंड एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग स्किल्स। देखिए, अगर आप कंप्यूटर ब्रांच ले रहे हैं एंड आप प्रोग्रामिंग नहीं सीखते हो, आप केवल कंप्यूटर की बेसिक थ्योरी पढ़ के कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहते हो, तो वो अच्छी बात नहीं होगी। अगर आप कंप्यूटर में अच्छा बनना चाहते हो तो आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग करिए। एक सवाल है CS एंड CSE, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। इन दोनों में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी का नॉमेनक्लेचर होता है। कई यूनिवर्सिटीज में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग होती है, जैसे हमारे यहाँ है। कई यूनिवर्सिटीज केवल कंप्यूटर साइंस बोलती हैं। वैसे नॉर्मली कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग को ज्यादा ये नॉमेनक्लेचर है, डिफरेंस बहुत नहीं होता है। BCA एंड MCA वर्सेस BTech CS विच इज बेटर? BCA प्लस MCA अगर आप करते हैं तो 3 साल का BCA और 2 साल का MCA, 5 साल का हो गया। पोस्ट ग्रेजुएशन मिल गया लेकिन 5 साल का है। एंड BCA MCA में बेसिकली आपका प्रोग्रामिंग वाला केवल पोर्शन ज्यादा होता है, जबकि कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पूरा कंप्यूटर इंजीनियरिंग से रिलेटेड आर्किटेक्चर और अगल बगल के डिटेल्स ज्यादा होती हैं। अगर आपको इमीडिएटली जॉब पोर्शन से देखना है तो शायद MCA थोड़ा बेटर होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में सर्वाइवल एंड लॉन्ग टर्म में डेप्थ के लिए BTech इज ऑलवेज बेटर। कंप्यूटर स्कोप एंड इलेक्ट्रॉनिक स्कोप सी थोड़ा सा अलग हो गई। कंप्यूटर इज मोर ऑफ अ प्रोग्राम पोर्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक इज मोर ऑफ अ हार्डवेयर पोर्शन। आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक्स से ज्यादा डेवलपमेंट कॉग्निटिव साइंस में और कंप्यूटर में हो रहा है, लेकिन अगेन इसका बहुत ही फिक्स्ड एक लाइन में बता देना पॉसिबल नहीं है। आज की डेट में कंप्यूटर का स्कोप ज्यादा है, लेकिन मैं अगेन आपसे कह रहा हूं, इसको ये आप नहीं बोल सकते फ्यूचर क्या है, तो फ्यूचर ही बताएगा। एंड हर फील्ड में जो अच्छा है उसको बहुत अच्छा स्कोप है। केमिकल इंजीनियरिंग का स्कोप अगेन अच्छा है। केमिकल में डेवलपमेंट्स बहुत ज्यादा नहीं हो रहे हैं, लेकिन आप किसी भी ब्रांच को लेते हो, उसमें एक्सेल करते हो, मेहनत करते हो तो आगे स्कोप है। ऐसा नहीं है किसी भी ब्रांच में स्कोप नहीं है, हर ब्रांच में स्कोप है। केमिकल में कंपैरेटिवली डेवलपमेंट कम हो रहा है, नई चीजें थोड़ा कम आ रही है, पुरानी चीजें ज्यादा आ रही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच आज की डेट में बहुत वायबल नहीं बची है, क्योंकि पहले बीच में जब IT सेक्टर आया था तो ये ब्रांचेस हर जगह आ रही थी। IT सेक्टर से रिलेटेड ही ब्रांचेस में क्या होता है कि कोर्स स्पेशलाइजेशन IT वाला हो जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, जबकि कंप्यूटर साइंस एक वास्ट ब्रांच है जिसका IT एक पोर्शन होता है। तो इट इज बेटर यू गो फॉर CS। IT जो इंडस्ट्री आई थी जब वेब स्टार्ट हुआ था, इंटरनेट, दैट वाज अराउंड 2000 ईयर के करीब करीब, उस टाइम बहुत बूम था, लोग नई वेबसाइट बना रहे थे, नई चीजें डेवलप कर रहे थे। अब तो वो एक स्टैंडर्ड हो गया, अब तो हर आदमी जानता है वेबसाइट डेवलप करना, एप्स बनाना, नेटिव एप्स बनाना। तो अब स्पेसिफिक IT से ज्यादा अगर आपको स्पेशलाइजेशन करना है तो आप IoT में करिए, डेटा साइंस में करिए, या AI ML में करिए, आप केवल IT में ना जाएं।
इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, सीएस से रिलेटेड ज्यादातर होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स के ज्यादातर जॉब जो है, क्योंकि हार्डवेयर के इंडिया में स्कोप्स अभी कम है। इंडिया में अभी तक ज्यादातर जो जॉब है वो इंडस्ट्री लेवल में सॉफ्टवेयर लेवल पे हैं, तो ज्यादातर सॉफ्टवेयर में ही आते हैं। स्कोप अच्छा है, आप उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, आईओटी के डिवाइसेस बना सकते हैं, लेकिन अगेन आई एम सेइंग कि वो ज्यादातर चीजें सीएस से रिलेटेड होती हैं। इट इज बेटर अगर आपका बहुत इंटरेस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल परस्यू करिए, जहां पे डिवाइसेस के साथ अच्छा स्कोप रहता है। इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल हम लोग के यहाँ ब्रांच है, काफी सारे कॉलेजेस में होती है जहाँ इलेक्ट्रॉनिक के साथ इलेक्ट्रिकल का भी स्कोप रहता है। फीस वेवर का पूछ रहा है, देखिए मेरा ये फी वेवर सीट जो होती है वो आपकी यूपीएसडब्ल्यू के थ्रू होती है, और आप अगर इस फीस वेवर सीट के थ्रू लॉक करते हैं हमारे कॉलेज में, तो आपका जो सबसे मेन जो एडवांटेज है वो आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी, और गवर्नमेंट से जो आपकी स्कॉलरशिप मिलती है वो ज़रूर मिलेगी, और हम लोग जो फीस वेवर में आपको अलग से भी कुछ डिस्काउंट देंगे, और इसके थ्रू आप लॉक कर सकते हैं। ये बहुत कम जो है इसमें जो है सीट होती है। और एक अगर आपने 11th में कंप्यूटर नहीं भी लिया हुआ है, बार बार आप पूछ रहे हैं, तो हर्ष देखिए 11th में कंप्यूटर अगर आपने नहीं भी लिया हुआ है तो कंप्यूटर साइंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बीटेक करने में, क्योंकि देखिए जो कोर्स होता है जो फर्स्ट ईयर है वो कॉमन है, और कंप्यूटर साइंस का बिल्कुल बेसिक से आपको चीज़ें पढ़ाई जाएगी। पहले आपको प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाएगी, जो सिलेबस होगा वो आपका बेसिक कंप्यूटर के बारे में होगा, हर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में आपको हर चीज़ें बताई जाएगी। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपने 11th या 12th में कंप्यूटर पढ़ा हो तो आप कंप्यूटर साइंस में आ सकते हैं, आपको भी आ सकते हैं, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी आप आसानी से कर सकते हैं। CS वर्सेस AI वर्सेस रोबोटिक, ये देखिए अलग हो गया, तीनों में ही कुछ चीजें कॉमन है। CS का यूज तीनों में होता है। रोबोटिक्स में आज की डेट में AI का बहुत यूज हो रहा है। रोबोटिक्स इज मोर ऑफ हार्डवेयर पोर्शन एंड AI एंड CS इज मोर ऑफ सॉफ्टवेयर पोर्शन। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप हार्डवेयर में ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो आप रोबोटिक्स में जाएं, लेकिन काफी चीजें कॉमन है। आप समझिए ग्रेजुएशन के बाद जब पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल होता है तो स्पेशलाइजेशन ज्यादा होता है। ग्रेजुएशन लेवल पे कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, काफी चीजें सेम होती हैं। अगर कुछ मार्केट में नया आया है जिसके जॉब्स, जैसे डेटा साइंस के जॉब्स ज्यादा आने की उम्मीद है, मशीन लर्निंग AI के जॉब्स ज्यादा आने की उम्मीद है, तो वो ब्रांच से बेनिफिट होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने AI ML कर लिया है तो आप किसी और चीज में नहीं जा सकते हैं, या अगर केवल CS करा है तो AI में नहीं आ सकते हैं। इंटरेस्ट के ऊपर है। आप में से जो स्पेसिफिक जवाब चाहें, देखिए चैट पे लिमिटेड है, आप क्या पर्टिकुलर सवाल पूछना चाहते हो। आई विल इनवाइट यू कि आप एक बार हमारे कॉलेज आएं, तो शायद सामने बैठ के आपको ज्यादा अच्छा जवाब दे सकें। आप में से कई लोग सेम क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हो, तो इट इज बेटर कि आप लोग बेटा मैक्सिमम लोग कानपुर के ही हैं, तो एक बार आप कॉलेज विजिट करिए, और विजिट करने के बाद आप एक बार लैब हमारी देखिए, और हमारे जो जितने भी आपके मन में सवाल हैं और भी जो डिटेल में हम लोग आपको दिखाएंगे कौन कौन सी बुक इसमें रहती है। और तो जैसे आप लोग पाइथन के बारे में पूछ रहे हैं, पाइथन एक नई लैंग्वेज है, और ये हम लोग इसको बहुत अच्छे लेवल पे यहाँ पर चलाते हैं, पाइथन से लेकर एडवांस पाइथन।